Good morning, children. Today we will learn about the cause of adsorption. In the previous video, we have seen what is surface chemistry and what are the surface phenomena like adsorption, colloid and catalysis. Then we saw that how adsorption is different from absorption and what are the different types of adsorptions. Now the question is, why adsorption takes place? What is the cause of adsorption? What peculiar property possessed by the atoms or molecules lying on the surface of material? ये एक चीज हो गई। दूसरी चीज कि सरफेस को कितने थिकनेस तक हम कन्फाइन कर सकते हैं। व्हाट इज आइडियल थिकनेस? इन सभी के बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम जान लें कि सरफेस क्या है, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में हम सरफेस के बारे में स्टडी करते हैं। डिफरेंट साइंटिस्ट का ये मत है कि सरफेस एंड आइडियल सरफेस इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द मटेरियल विद जीरो थिकनेस। लेकिन क्या हम ऐसा बिलीव कर सकते हैं कि कोई भी सरफेस जो टॉप मोस्ट लेयर है उसकी थिकनेस जीरो होगी? तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो साइंटिस्ट ने कहा कि सरफेस फेनोमेनन जो टॉप फ्यू एटॉमिक लेयर्स हैं वहां तक हम कन्फाइन कर सकते हैं। सपोज दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स ऑन द टॉप ऑफ और मॉलिक्यूल्स ऑन द टॉप ऑफ सम मटेरियल। सो सरफेस फेनोमेनन कैन बी कन्फाइंड टू फ्यू atomic layer deep, means top few atomic layers can be included in the surface, and all the surface phenomenon is studied in these layers. How the molecules are attracted by the particles, by the atoms lying on the surface of other materials, that is adsorbent. So let us see what is the behavior of atoms or molecules lying on the surface. जो surface पर particle है वो क्यों उनमें ये ability है कि वो दूसरे substance के particles को attract करते हैं और उनको अपने surface पर retain करते हैं। So now अगर हम surface का concept लें तो definitely हम solid, लिक्विड और गैसेस में से अगर हम सरफेस को डिफाइन करें तो हम केवल सॉलिड और लिक्विड में डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि गैसेस के केस में वो इंटरमिक्स हो जाते हैं और वहां पर कोई भी क्लियर कट सरफेस नहीं रहता है। तो सबसे पहले अगर हम ये देखें कि हमारा जो एडजॉर्बेंट है वो सॉलिड है या लिक्विड है, तो पहले अगर हम लिक्विड का केस ले लें तो सपोज वी हैव सम लिक्विड इन अ बीकर। Now, if you see that the molecules of the liquid which is in the bulb, its behavior is different than the molecules of the liquid lying on the top, lying on the surface. How? If you see the molecules in the bulb, then these molecules are attracted from all sides by neighboring liquid molecules like this. So what happens here? The resultant force of attraction experienced by the bulk molecule becomes zero, because it is attracted from all sides by the similar molecules, by the liquid molecules. Now what is the nature of molecules lying on the surface? They are attracted only the molecules lying in the bulk, because we have only less number of molecules in the vapor phase. So because of this unbalanced forces, because molecules lying on the surface, they are attracted by the bulk molecules only, because we don't have much molecules in the upper part, in the vapor phase. It may be few molecules are there present in the vapor phase, but the forces of attraction exerted by the molecules in the vapor phase is different. It is lesser, we can say, than the forces of attraction that are felt by the surface molecules downward or towards the bulk. So what this happens? The molecules lying on the surface, they experience some kind of tension, and this tension
of the liquid molecules on the surface is only due to this inward pull. And this inward pull is, what is the nature of this inward pull is, it is unbalanced in nature, unbalanced force. This unbalanced force is possessed by the molecules lying on the surface. But whatever molecule is in the bulk, these are not having unbalanced forces. These molecules are having balanced forces because they are equally attracted from all sides. तो जो सरफेस पर मॉलिक्यूल्स हैं, चूंकि ये टेंशन में हैं, इनके पास इनवर्ड पुल है, तो वो उस इनवर्ड पुल को सेटिस्फाई करना चाहते हैं, उसको न्यूट्रलाइज करना चाहते हैं। तो जब भी कोई मटेरियल इनके कांटेक्ट में आता है तो उसको उस इनवर्ड, उस अनबैलेंस्ड फोर्स को सेटिस्फाई करने के लिए ये मॉलिक्यूल्स, जो सरफेस पर मॉलिक्यूल्स हैं, वो दूसरे सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स को अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं एंड देन दे रिटेन ऑन द सरफेस. सो इन दिस वे द इनवर्ड पुल और अनबैलेंस्ड फोर्सेस गेट सेटिस्फाइड. सो दिस कैन बी वन ऑफ द रीजंस why the surface of the material is very active and it has tendency to attract the molecules of other substances and retain them on their surfaces just to satisfy their tension or just to satisfy their unbalanced forces. Clear? Now, if we take some other sort of solids, especially in case of catalyst, what happens? अगर हम जो मोस्ट कॉमन कैटलिस्ट, जैसा आपने 10th में भी पढ़ा था, हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, निकिल कैटलिस्ट का काम करता है. तो अगर हम निकिल का बिहेवियर देखें, सो निकिल इज सॉलिड. तो होता क्या है कि निकिल एक मेटेलिक सॉलिड है बच्चों, आप जानते हैं. एंड दिस निकिल विच इज मेटेलिक सॉलिड, इट इज हेल्ड बाय मेटेलिक बॉन्ड्स बाय द नेबरिंग निकिल एटम्स एंड दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस वन. इस तरह से अट्रैक्टेड. ये लाइन जो है ये मेटेलिक बॉन्ड्स है जो कि निकिल एटम के बीच में काम कर रहा है. अब आप सोचिए कि जो निकिल एटम्स बल्क में है वो तो चारों तरफ से निकिल एटम से, मेटेलिक बॉन्ड से अट्रैक्टेड हैं और उनके जो बैलेंसेस हैं वो सेटिस्फाइड है. लेकिन जो निकिल एटम्स सरफेस है उनमें क्या है? अब आप देख रहे हैं कि ये लाइन खाली है, ये वैकेंट है, ये अनयूटिलाइज्ड है. तो ये जो लाइन है ये एक्चुअली अनयूटिलाइज्ड बैलेंसेस हैं और इन्हीं अनयूटिलाइज्ड बैलेंसेस की वजह से जो सरफेस एटम्स हैं मेटल के, वो मॉलिक्यूलर स्पीसीज लाइक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को अपने तरफ क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं. और उनको अट्रैक्ट करके उसी अनयूटिलाइज्ड बैलेंसी से उसके साथ बॉन्ड बना लेते हैं और एक सरफेस कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है. एंड देन द गैसेस लाइक हाइड्रोजन गेट एडजॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ निकिल बिकॉज ऑफ दिस अनयूटिलाइज्ड बैलेंसेस. क्लियर? तो हम ये आपको बताना चाहेंगे कि जो एडजॉर्प्शन हो रहा है उसके दो मेन रीजन है. पहला, सरफेस पर जो पार्टिकल्स हैं उनके पास अनबैलेंस्ड फोर्सेस हैं ड्यू टू सरफेस टेंशन. उस अनबैलेंस्ड फोर्स को सेटिस्फाई करना चाहते हैं, इसलिए वो दूसरे मॉलिक्यूलर स्पीसीज को जो उनके कांटेक्ट में आता है उनको अट्रैक्ट करते हैं और अपने सरफेस पर रिटेन कर लेते हैं. दूसरा कॉज है कि इन केस ऑफ मेटल सॉलिड्स द सरफेस एटम्स possess unutilized balances. Due to this, as we know, what is balancing? It is combining capacity. तो अगर इनकी combining capacity unutilized रह गई तो ये क्या करेंगे? दूसरे molecules को, दूसरे atoms को अपने तरफ क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे और उनको अपने सरफेस पर रिटेन कर लेंगे. So this is the cause of adsorption. Clear? Now we will take another topic that is called as enthalpy of adsorption. Enthalpy of adsorption. बच्चों, इसको समझने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि एडजॉर्प्शन में हो क्या रहा है. एक्चुअली एडजॉर्प्शन के समय एक न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है. किसके किसके बीच में? ये हमारा एडजॉर्बेंट है,
एडजॉर्बेंट, और ये उसका टॉप एटॉमिक लेयर है, और ये मॉलिक्यूलर स्पीसीज है, ये भी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो कि आ रहा है और इसको इस पर एडजॉर्ब होना है। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लेकिन जब ये इस एडजॉर्बेंट या निकल के कांटेक्ट में आता है या किसी मेटल के कांटेक्ट में आता है तो ये एक न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करने लगता है। और ड्यू टू दिस न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जैसा कि हम जानते हैं कि अगर दो पार्टिकल के बीच में नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है जब भी, तो उस समय एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। इसी रिलीज्ड एनर्जी को हम डेल्टा एच एडजॉर्प्शन बोलते हैं। दैट इज enthalpy change. Delta means change, H for enthalpy or heat change during what? Adsorption process. So enthalpy of adsorption is defined as the amount of heat energy liberated when 1 mole of adsorbate get completely adsorbed on the surface of adsorbent. So since here the heat energy is liberated, so the delta H added means enthalpy change of adsorption will be always negative. It means adsorption is exothermic process. अगर आप इसको रिप्रेजेंट करें इक्वेशन से, so suppose this is gas plus adsorbent gives gas over adsorbent प्लस हीट। और जैसा हम जानते हैं कि एडजॉर्प्शन एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो यहां पर हम डबल हेड एरो लाइन लगा सकते हैं कि अगर हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में देखेंगे तो जब भी एडजॉर्प्शन होगा कोई गैस किसी एडजॉर्बेंट के सरफेस पर आएगा, एडजॉर्ब होगा, तो हीट एनर्जी लिबरेट होगी। और अगर अपोजिट हम देखें कि अगर कोई एडजॉर्ब, जैसे मान लीजिए कोई सरफेस है या हमारा चारकोल है, एडजॉर्बेंट है, उस पर पॉइजनिंग गैसेस एडजॉर्ब, हम उसको हीट कर दें, तो हीट करेंगे तो क्या होगा, जो एडजॉर्ब गैसेस हैं वो बबल बना के इवॉल्व हो जाएंगे। तो अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में देखें तो जब हम हीट देंगे तब उस समय जो एडजॉर्ब गैसेस हैं they will removed from the surface, they will be dissolved from the surface. So enthalpy of adsorption क्या हो गया बच्चों, निगेटिव हो गया। अगर हम यहीं पर और दूसरे थर्मोडायनेमिक पैरामीटर की बात कर लें तो एक्चुअली जो एडजॉर्प्शन है, एडजॉर्प्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एंट्रोपी चेंज भी यहां पर, जिसको हम डेल्टा एस से लिखते हैं, डेल्टा एस एडजॉर्प्शन, ये भी नेगेटिव होता है। कैसे? अब अगर हम मान लें कि ये गैस मॉलिक्यूल सरफेस पर नहीं है, दे आर इन गैसियस फेज, सो वंस दे आर इन गैसियस फेज इट मीन्स दे आर मूविंग randomly here and there in all possible directions. So there is very high randomness, there is much randomness, so their entropy will be very high. But once they are brought and settled on the surface of adsorbent, then their randomness is diminished up to greater extent. Now they are no longer randomly moving because they are held on the surface. So in this way, so during the process of adsorption, the randomness decreases. So the entropy change, which is the entropy of final state minus entropy of initial state. इनिशियल स्टेट में गैसियस स्टेट में था तो उस समय रेंडमनेस ज्यादा है, और फाइनल स्टेट में एडजॉर्ब कंडीशन में होगा तो रेंडमनेस कम हो जाएगी, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। अगर हम फ्री एनर्जी चेंज ड्यूरिंग एडजॉर्प्शन की बात करें, सो एज वी नो दैट डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो जो हमारा एडजॉर्प्शन प्रोसेस है, दिस इज स्पॉन्टेनियस इन नेचर। स्पॉन्टेनियस का मतलब ये होता है कि ऐसा प्रोसेस जो अपने आप हो, इनिशिएशन के बाद या विदाउट एनी इनिशिएशन। तो ऐसे केसेस में हमने ये देखा कि जो डेल्टा एच की वैल्यू है वो नेगेटिव होती है, यहां पर हमने देखा डेल्टा एस की वैल्यू
नेगेटिव होती है, और अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट भी रखते हैं तो उस समय हम देख रहे हैं कि जो डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। अब जैसे जैसे एडजॉर्प्शन का प्रोसेस होता है वैसे वैसे जो एंट्रोपी चेंज की नेगेटिव वैल्यू है ये क्या होती जाएगी, ये बढ़ती जाएगी। और चूंकि हमें इस टी डेल्टा एस को इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, तो आप उस कंडीशन की सोचिए जबकि टी डेल्टा एस की वैल्यू डेल्टा एच के बराबर हो जाए, तो उस समय जो डेल्टा जी है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा एस नेगेटिव है और इसको डेल्टा एच नेगेटिव वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये चीज क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो अगर टी डेल्टा एस की वैल्यू डेल्टा एच के बराबर हो गया तो उस समय डेल्टा जी क्या होगा, जीरो हो जाएगा, और उस समय प्रोसेस इक्विलिब्रियम को अटेन कर लेगा। उस समय प्रोसेस कहां पहुंच जाएगा, एट इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम का मतलब ये होगा कि अब दो अपोजिंग प्रोसेस इक्वल रेट से होने लगेंगे, और वो दो अपोजिंग प्रोसेस कौन है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में उसको बोलेंगे क्या, एडजॉर्प्शन, और रिवर्स डायरेक्शन में उसको बोलेंगे डिजॉर्प्शन। तो इन दोनों प्रोसेस का रेट क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, और जब इन दोनों अपोजिंग प्रोसेस का रेट इक्वल होगा तो उस समय जो फ्री एनर्जी चेंज होगी वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। सो नाउ दिस इज द थर्मोडायनेमिक कॉन्सेप्ट ऑफ एडजॉर्प्शन। नाउ वी विल सी सम मोर पॉइंट्स अबाउट द फिजिकल एडजॉर्प्शन एंड केमिकल एडजॉर्प्शन, जिसको कल हमने डिस्कस किया था। आज हम फिर लेंगे और एनर्जीज को कंपेयर करेंगे फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन के केस में। सो व्हाट इज फिजिकल एडजॉर्प्शन? वी हैव सीन इन प्रीवियस वीडियो कि फिजिकल एडजॉर्प्शन में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ही वीक होता है, फिजिकल एडजॉर्प्शन। और अगर हम इधर केमिकल एडजॉर्प्शन लिख लें ताकि हम पॉइंट वाइज इसको कंपेयर कर सकें, केमिकल केमिजॉर्प्शन, केमिकल एडजॉर्प्शन, और यहाँ पर फिजिकल एडजॉर्प्शन। फिजिकल एडजॉर्प्शन को हम वैन वाल एडजॉर्प्शन भी बोलते हैं, और केमिजॉर्प्शन या केमिकल जो एडजॉर्प्शन है इसको हम लैंग-म्यूर एडजॉर्प्शन भी बोलते हैं। तो अगर हम पॉइंट वाइज कंपेयर करें, पहला जो फिजिकल एडजॉर्प्शन है इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होगा, वीक वैन डर वाल होगा। यहां पर अगर हम केमिकल एडजॉर्प्शन में देखें तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड होंगे, मे बी आयनिक, मे बी कोवेलेंट। दूसरा, फिजिकल एडजॉर्प्शन नॉन स्पेसिफिक होगा, केमिकल एडजॉर्प्शन स्पेसिफिक होगा, क्योंकि केमिकल बॉन्ड हर दो मटेरियल के बीच में नहीं बन सकता है। फिजिकल एडजॉर्प्शन वर्सेटाइल है, नॉन स्पेसिफिक है, ये स्पेसिफिक है। फिजिकल एडजॉर्प्शन में कोई कंपाउंड फॉर्मेशन नहीं होता है, और केमिकल एडजॉर्प्शन में सरफेस कंपाउंड बनते हैं। फिजिकल एडजॉर्प्शन रिवर्सिबल है, जो गैसेस किसी सरफेस पर एडजॉर्ब है अगर हम उसको हीट करें या रिमूव करें तो वो गैसेस फॉर्म में ही डिजॉल्व होती है। लेकिन केमिकल एडजॉर्प्शन के केस में जब भी, जैसे मान लीजिए निकल या कैटलिस्ट या मेटल के सरफेस पर जब भी कोई गैस एडजॉर्ब होता है, तो जब वो गैस एडजॉर्ब होता है तो वो अपने सरफेस कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे अगर हाइड्रोजन गैस निकल के सरफेस पर एडजॉर्ब हो जाता है तो वो निकल हाइड्राइड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि एक सरफेस कंपाउंड है। तो अगर हम इसको डिजॉल्व करेंगे तो वो सरफेस की एक लेयर ही लेके बाहर निकलेगा, जिसके डिजॉर्प्शन के लिए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगा, और या जो हमारा डिजॉल्व फॉर्म होगा वो कंपाउंड के फॉर्म में होगा, वो गैसेस के फॉर्म में नहीं होगा। तो हम ये कर सकते हैं कि जो केमिकल एडजॉर्प्शन है वो इरिवर्सिबल है, जबकि फिजिकल एडजॉर्प्शन रिवर्सिबल है। गैस जिस फॉर्म में एडजॉर्ब हुई है उसी फॉर्म में निकल जाती है। अब बच्चों हम एंथैल्पी की बात करें। चूंकि फिजिकल एडजॉर्प्शन में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत वीक होता है, तो यहाँ पर जो लिबरेटेड एनर्जी है वो केवल 20 to 40 किलो जूल पर मोल होती है। लेकिन अगर हम केमिकल एडजॉर्प्शन में बात करें तो चूंकि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, तो जो यहाँ पर एनर्जी लिबरेट होती है वो 200 to 400 किलो जूल पर मोल होगी। 20 to 40 किलो जूल पर मोल, और यहाँ 200 to 400 किलो जूल पर मोल के ऑर्डर की होगी।
दूसरी बात यह आती है कि फिजिकल एड्जॉर्प्शन के होने के लिए किसी एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी देने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन हम जैसा जानते हैं कि इन केस ऑफ केमिकल एड्जॉर्प्शन सरफेस कंपाउंड इज फॉर्म, केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म, और केमिकल बॉन्ड को बनाने के लिए कई बार हमें एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन देने की जरूरत पड़ेगी, जिसकी अमाउंट अलग अलग गैसेस के एड्जॉर्प्शन में अलग अलग होगा। सो नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर फिजिकल एड्जॉर्प्शन, बट एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, जिसको आप काइनेटिक्स में पढ़ चुके हैं, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ केम एड्जॉर्प्शन। यहाँ पर मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर बन जाते हैं, कई लेयर की थिकनेस हो सकती है क्योंकि स्पेसिफिक फोर्स है नहीं, और यहाँ पर केवल एक ही मॉलिक्यूलर थिक लेयर बनेगी। जैसे अगर हाइड्रोजन गैस एक बार एड्जॉर्ब हो गया तो अब हाइड्रोजन के ऊपर तो हाइड्रोजन एड्जॉर्ब नहीं होगा क्योंकि वहां पर कोई फ्री वैलेंसी नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर जो केमिकल एड्जॉर्प्शन है, इस पे जो एड्जॉर्ब लेयर है उसकी थिकनेस केवल मोनो एटॉमिक होगी या यूनिमॉलिक्यूलर थिक होगा, लेकिन यहाँ पर मल्टी मॉलिक्यूलर थिक होता है। तो इस तरह से हम फिजिकल एड्जॉर्प्शन और केमिकल एड्जॉर्प्शन को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। नाउ वी विल टेक द नेक्स्ट टॉपिक, that is factors affecting the absorption of gases on solid. So now what are the factors which influence the absorption of gases on solid? So this is a very important topic. Factors affecting absorption of gases on solid. तो ये हमारा टॉपिक है। There are various factors which influence the absorption of gases on solid. तो सबसे पहले हम लिस्ट कर लें कि वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट है नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट। नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट मीन्स जो गैसेस है उनका नेचर क्या है। दूसरा, नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट, जिस सरफेस पर एडजॉर्प्शन फिनोमेनन हो रहा है उसका नेचर क्या है। थर्ड, स्पेसिफिक एरिया, स्पेसिफिक एरिया। फोर्थ, प्रेशर of gas. Fifth, temperature. Sixth, activation of adsorbent. बच्चों ये केवल कुछ फैक्टर्स हैं जिस पर एड्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड डिपेंड करता है। हम एक एक करके लेंगे। सबसे पहले नेचर ऑफ एड्जॉर्ब देख रहे हैं। फर्स्ट इज द नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट, दैट इज गैसेस। तो हाउ द नेचर ऑफ गैसेस इन्फ्लुएंस द एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन। तो इसमें अगर हम ये देखें कि इफ वी टेक सम कॉमन एड्जॉर्बेंट and we allow different gases to get absorbed। मान लीजिए यहाँ पर एक कॉमन एड्जॉर्बेंट है, मे बी चारकोल, ये हमारा कॉमन एड्जॉर्बेंट है, और डिफरेंट गैसेस के एड्जॉर्प्शन की हम स्टडी करते हैं, जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, मीथेन, HCl, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड। ये गैसेस हैं जिसके एड्जॉर्प्शन की स्टडी हम इस कॉमन एड्जॉर्बेंट पर करते हैं। तो हम ये देखते हैं कि जो पर ग्राम एड्जॉर्बेंट है, पर ग्राम चारकोल है, जो कि डिफरेंट एक्सटेंट ऑफ गैसेस को अपने ऊपर एड्जॉर्ब करता है। अगर हम हाइड्रोजन गैस लेते हैं तो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन डिफरेंट होता है, नाइट्रोजन लेते हैं तो डिफरेंट होता है, अमोनिया लेते हैं तो डिफरेंट होता है, और SO2 लेते हैं तो डिफरेंट। अब यही बात यहाँ पर आ रही है कि ऐसा क्यों हो रहा है, कौन सी प्रॉपर्टी है
जो कि इस एडजॉर्प्शन को, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन को इन्फ्लुएंस कर रहा है यहाँ पर। तो हम ये देखते हैं कि वो गैसेस किसी भी सरफेस पर ज्यादा इजिली एडजॉर्ब होती हैं और ज्यादा एक्सटेंट में एडजॉर्ब होती हैं जो इजिली लिक्विफिएबल होती है। ये कॉन्सेप्ट हुआ, मोर इजिली लिक्विफिएबल गैसेस गेट एडजॉर्ब टू द ग्रेटर एक्सटेंट। मोर इजिली लिक्विफिएबल कौन सी होंगी? जिनके पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, वो आसानी से लिक्विफाई हो जाएंगी। और ऐसे गैसेस की किसी सरफेस पर या एडजॉर्बेंट पर ज्यादा एक्सटेंट तक एडजॉर्ब होती है। तो अगर हम इन सभी गैसेस को देखें और ये फाइंड आउट करें कि कौन सी गैस ज्यादा इजिली लिक्विफाइबल है, तो ये क्लियर है कि जैसे जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है वैसे वैसे ईज ऑफ लिक्विफैक्शन भी बढ़ता है। अगर हम कंपेयर करें यहाँ, तो यहाँ पर वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यहाँ पर वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यहाँ पर भी वैन डर वाल है लेकिन डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और यहाँ पर डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है, बट इट इज मच स्ट्रॉन्गर। तो हम ये देखते हैं कि more easy is the liquefaction of gases, more easy will be the adsorption। ये हमारा कॉन्सेप्ट है। और greater the ease of liquefaction of the gases, greater will be the extent of adsorption। अब किसी गैस का जो लिक्विफिकेशन है वो उसके क्रिटिकल टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। तो अगर हम ये देखें कि ऐसा गैस जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होता है, ऐसा गैस जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होता है, उसका ईज ऑफ जो एडजॉर्प्शन है वो ज्यादा होगा, उसमें एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन ज्यादा होता है। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है? द टेम्परेचर अबव विच एनी गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड व्हाटसोएवर हाई प्रेशर इज अप्लाइड। चाहे जितना प्रेशर लगा दीजिए लेकिन उसको हम लिक्विफाई नहीं कर सकते हैं। तो जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है, इसका मतलब ये होगा कि हम उसको आसानी से लिक्विफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि इनका जो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन है वो इसी ऑर्डर में होगा जिस ऑर्डर में इनका ईज ऑफ लिक्विफैक्शन है। तो हम ये कर सकते हैं कि जो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन है वो गैस के नेचर पर डिपेंड करता है। जो गैसेस इजिली लिक्विफाइबल होंगी वो ज्यादा एक्सटेंट तक एडजॉर्ब होंगी ऑन कॉमन एडजॉर्बेंट। Okay, now we will take the second point.